جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ عاصم صاحب کہ آپ نے میری خواہش کے اوپر زحمت کی، یہاں تشریف لائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ملاقات کا جو مقصد ہے وہ ہے آپ کے والد مرحوم کی یادوں کو تازہ کرنا، یاد رستگاں کے سلسلے میں۔ میری یادیں بہت کم ہیں ان کے ساتھ، لیکن بہت اچھی ہیں۔ اور جب یہی معمار ان کو میں نے دیکھا تھا، ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ ذرا ریکال کریں ان کے بچپن کے بارے میں، جو چیزیں آپ نے سنی سنائی ہوں، مجھے یقین آپ نے دیکھی تو نہیں ہوں گی ان کے بچپن کی باتیں تو ذرا پہلے وہاں سے ریکال کریں، اور ان کی پھر اس کے بعد آئے تو اسکولنگ کے بارے میں یا اساتذہ کے بارے میں۔ تو کیا آپ نے سنا ان کے بچپن کے پہلے آپ کا بہت شکریہ، مہربانی، آپ نے یاد فرمایا۔ اور آپ سے ملاقات ہوئی گھر پہ بابا کے ساتھ بھی، اور آپ کے والد صاحب مرحوم کے ساتھ۔ میں انہی کے حوالے سے آپ کیا جان رہا تھا؟ جی ہاں، وہاں رہا۔ تو بابا کی اگر بات کرتے ہیں، مجھے بابا کہتے تھے، نام سید اماد الدین قادری۔ بچپن بہت محبت، ہر چیز میں بہت کیئرنگ، کچھ بھی ہو سب سے پہلے نام انہی کا آنا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ بہت ہی اچھا چیزوں میں، ڈسپلن کے حوالے سے بہت سختی ضرور ہوتی تھی، مگر کلیئر ہوتا تھا کہ وہ کن چیزوں میں پرٹیکولر ہے، کنفیوژن نہیں ہوتی تھی۔ ڈنڈا کس کے پاس؟ امی کے پاس یا ابا کے پاس؟ ہاں، کبھی کبھی امی کے پاس ہوتا تھا، مگر میں اکثر بھاگ جاتا تھا، بڑے بھائی پھنس جاتے تھے۔ سو یہ ایک الگ چیز ہے، مگر بابا کو ہر چیز میں پروموٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ جی میں چاہوں گا پہلے سے آپ آئیں کہ مدراس کے دنوں سے، حیدرآباد دکن کے دنوں سے شروع کریں۔ اچھا، آپ ان کے بچپن کی بات کر رہے ہیں تو بابا کی آدمی کا بھی بچہ بھی ہوتا ہے جناب۔ ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ 1936 کی پیدائش ہے بابا کی۔ اچھا، مدراس جو اب چنائے کہلاتا ہے جی۔ اور تعلیم بابا کی مدراس کی بھی ہے اور حیدرآباد دکن کی بھی ہے۔ ہمارے دادا سید تاج الدین احمد قادری صاحب، وہ ایک سرکاری ملازم تھے۔ اچھا، سو اس لیے ٹرانسفرز ہوتی تھے، کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں۔ پولیس میں نہیں گئے؟ ہاں، پولیس میں نہیں گئے؟ وہ نہیں، پولیس میں نہیں تھے، وہ محکمہ مال میں تھے۔ اچھا اور لینڈ ریکارڈ وغیرہ میں۔ اور میرے دادا کے اگر میں بات کر رہا ہوں سر، تو وہ سنسکرت کے بہت بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ پنڈت بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے ڈسکشنز کے بعد۔ یہ ان کی مین اسپیشل، اور ڈفرینٹ ایریاز۔ آپ دادا کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی دادا کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی۔ تو پھر تعلیم کے حوالے سے بابا کا مختلف جگہ آنا ہوتا تھا۔ تعلیم میں بابا ظاہر ہمیشہ سے آگے رہے، بعد میں بھی۔ تو میٹرک بابا کا جب وہاں ہوا تو بابا نے امتیازی نمبروں سے اور فرسٹ لیول پہ ٹاپ کہہ سکتے ہیں آپ، مدراس میں پہلا مسلمان تھا، اس سے پہلے ہندو۔ ان کے اسکول کا کیا نام تھا؟ کوئی خاص وجہ نہیں، مجھے اسکول کا نام تو یاد نہیں ہے بابا کے۔ اور میرے اتفاق سے نانا جو تھے مولانا ابو جلال ندوی صاحب، وہ بھی مدراس کے اندر رہے ہیں کافی، اس کے اندر، تو ان کے تحریروں سے، ان کے حوالے سے میں جانتا ہوں مدراس کے بارے میں۔ جی 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 جی۔ تو وہاں رہے، اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو کچھ سالوں کے بعد، 2 سال بعد، بابا جب وہاں سے، بچپن کی اگر وہاں کی بات کریں تو سنے بابا وہاں بچپن میں بہت شریف تھے، بہنوں بھائیوں کزن سے ملنا جلنا، ہلا گلا، بہت بڑی فیملی، سب ساتھ ہی رہتے تھے، اور آنا جانا بھی فیملی میں ہمیشہ سے ایک کمبائنڈ فیملی رہی۔ سو اس کے بعد جب پاکستان آنے کا فیصلہ ہوا تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پہنوسی نہیں ملی، تو وہ بہرحال آنا پڑا ان کو۔ پھر بابا کو آفر بھی ہوئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسکالرشپ دیں گے، اس طرح کی باتیں۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا آنے کا، تو کافی حد تک ہماری فیملی کے لوگ ادھر آ گئے، اور بڑی لمیٹڈ وہاں اچھے ویل آف فیملی تھی، کافی بڑا باغ تھا دادا کا ایک شوق ہارٹی کلچر بھی تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں حیدرآباد دکن مدراس دونوں جگہوں کے، اور مختلف ٹائمنگز میں رہے گئے لوگ۔ اس کے بعد پھر یہ پاکستان آ گئے 1952 میں۔ اچھا جی۔ اور یہاں آنے کے بعد کچھ بابا نے پرائیویٹ تعلیم اپنی کی، BA تک تعلیم حاصل کی، ساتھ ساتھ چونکہ ظاہر ایس سچ کوئی اکنامیکلی کوئی چیز ٹیک ہوم نہیں تھا، صرف چند کتابیں لائے تھے اور کچھ چیزیں لے کر آئے تھے۔ سو پھر نوکری بھی کی بچپن سے، پھر بابا کی شادی ہوئی 57 میں، ہندوستان جا کے میری والدہ سے شادی کی، رشتے دار ہی تھے۔ تو یہ سلسلہ رہا۔ اس کے بعد آگے چلتا رہا، بچپن تو ختم ہو گیا، 20-21 سال سے پہلے یہاں تک ہم پہنچ گیا۔ تو خود آپ کی پیدائش کب کی ہے؟ میری 66 کی، اب ماشاء اللہ 1966 کی، تو میں 60 کا ہو گیا۔ اور 60 کے ہو گئے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں بھی صرف 72 سال کا ہوں، میری 54 کی پیدائش ہے۔ ماشاء اللہ، صرف 12 سال بڑے ہیں۔
बच्चा हूँ आपके आगे अभी, माशाल्लाह 72 साल का बच्चा हूँ मैं। माशाल्लाह। तो बचपन में कैसा देखा आपने वालिद साहब को अपने? बाबा बहुत मोहब्बत करने वाले, हर किसी के साथ, खानदान में हर कोई उनसे कंसल्ट करता, डिस्कशन करता, कोई सी भी चीज पूछनी हो और मदद करनी हो, इल्मी हवाले से कोई मुश्किलात पड़ जाए, उसमें एक टेंशन हो कहीं पे भी। और इल्मी हवाले से तो तालीम में बाबा हमेशा से लोगों को प्रमोट करते रहे, और खुद भी बाबा का ऐसा मुताले का मामला था कि जब ऑफिस अपने बसों में आते जाते थे तो बताते थे कि मैं जब बस में सीट नहीं मिलती थी तो मैं एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से मेरी किताब होती थी लेकिन वहां लग जाती थी, तो इतना मुताले का शौक था। और घर में हम रात में देखते थे उनको, बाबा अमूमन 1-2 बजे तक मुताला करते थे। अच्छा। और हम जाके लेट जाते थे बाबा के पास, बाबा कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कभी उनसे ये नहीं सुना ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अच्छा। 5-6 साल, 8 साल, 9 साल उम्र, 6 साल में भी मुश्किल मुश्किल किताबों को भी बच्चों के हिसाब से बताते थे। मतलब मुझे अभी तक एक किताब याद है, बाबा पढ़ रहे थे, उसका नाम ही मेरे जहन में रह गया, हमारी लाइब्रेरी में अभी भी है, द डिस्कवरी बिहाइंड द आयरन कर्टन। वो अच्छा। एक साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी से मुतालिक है किताब। तो बाबा ने उसका भी हमें जिस बताया, हालांकि अभी नाम पे भी गौर करते हैं तो पता नहीं किस बारे में थी किताब मैं सुना कि रशिया के बारे में होगी जी, तो वो के नाम बारे से में। नहीं लगता जी, है। हाँ। तो वो आराम से पतला करके बच्चे के हिसाब से बताना, छोटे छोटे को भी और बड़े से बड़े। इल्मी लोगों की सोबत में देखें तो बेहतरीन उर्दू, और अंग्रेजी हो तो फिर अंग्रेजी बहुत आला। मगर बच्चों के साथ बात करते थे तो बच्चे के साथ बच्चों की स्टोरीज पे बाबा ने सुनाई है, वो हमने रिकॉर्ड भी किए हैं अपने नवासे नवासे पोता पोतियों को। अच्छा। माशाल्लाह एक जमाने में बाबा ने सुहाबा की और अंबिया की उनके हिसाब से स्टोरीज बाबा ने सुनाई। आपने महफूज रखी तो है इसको? ये जी महफूज है बाबा, तो ये बचपन के हवाले से और हर चीज में। अच्छा, जब आप शरारतें वारतें करते थे तो उनका क्या रद्द अमल होता था कुछ? शरारतें छोटी मोटी होती थी तो बाबा खुद भी इंजॉय करते थे, कभी नाम भी कहते थे आसिम ये कहता है, कभी कोट भी कहते थे आसिम ने कहा। और भी बहन भाइयों में मैं थोड़ा ज्यादा शरारती था, हर किसी का अपना अंदाज था। और सख्ती चंद चीजों में होती थी डिसिप्लिन के हवाले से, और पढ़ाई या दूसरी चीजों को अहमियत नहीं देने की वजह, कभी कोई कभी बात हो जाए तो कभी इनको सख्ती करता देख के आपने ये नहीं पूछा कि बाबा आप भी तो ये क्या करते थे बचपन में? नहीं कभी हमारा बचपन की छीन है? सोचा भी नहीं, उस जमाने में ख्याल भी नहीं आया अच्छा। कि ऐसा कि मगर ये है कि मार भी पड़ती थी कभी कभी। अच्छा। और बड़े भाई को ज्यादा पड़ती थी क्योंकि बड़ा भाई तो फर्स्ट बच्चा होता है, तो पेरेंटिंग का भी पहला एक्सपीरियंस ही होता है ना सबका। जी जी जी। तो मैं उमन इधर उधर हो जाता था, या मुझ तक आते आते गुस्सा ठंडा भी हो जाता था। कितने भाई हैं आप माशाल्लाह? हम लोग 8 बहन भाई हैं, हाँ। 5 भाई हैं, हाँ। और 3 बहनें हैं। सब ज़ाहिर है सबकी औलाद की औलाद भी हो चुकी है। आपके बड़े भाई का नाम? सैयद अब्दुल राज़िक कादरी, प्रोफेसर अब्दुल राज़िक कादरी। अच्छा, वो आपके बड़े भाई हैं? जी जी। मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है क्योंकि मैं भी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ। मुझे मालूम है बड़ा होने के लिए बड़ा छोटा होना पड़ता है। वो मेरे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। जी 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 जी। तो बड़ा होना जो है ना उससे बड़ा छोटा होना पड़ता है। बड़े ये आपका जुमला बड़ा मार का तुला रहा है कि बड़ा होने के लिए छोटा होना पड़ता है। नहीं, ये मुझे मेरे एक बड़े भाई ने बताया जो अपने घर के बड़े हैं, हाँ। और मेरे दिल में लग गई थी कि वाकई बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बड़ा क्योंकि उनपे आज पहली दफा माँ बाप को भी फर्स्ट टाइम पेरेंटिंग कर रहे होते हैं ना, बाद में उनको लगता है कि हमने सख्ती कर दी, तो अब वो उनके साथ हो चुकी होती है। वो तो वो सारे गुरु आजमाए जा चुके थे। मोहब्बत भी बहुत मिलती है, बिल्कुल मोहब्बत भी बहुत मिलती है, लेकिन फैटी भी बड़ी लगती है बड़ों को। अच्छा खैर, तो बात हो रही थी इनकी कि आपने बताया कि बच्चों को बच्चा बन के वो किताबें पढ़ के सुनाते थे, शौक पूरा करते थे। बातें बहुत सारी हैं, मगर जब भी कहते हैं ना कि किसी का जैसे एक बात करते हैं, आज आप कॉर्पोरेट लाइफ की भी आपके होते हैं सेशंस, उसमें एक वर्ड करते हैं ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज, बिल्कुल। किसी को सोच कर किसी के ब्रांड के बारे में पहला ख्याल क्या आता है, क्या उसका पर्सोना बनता है। हाँ बिल्कुल। तो बाबा जब सोचते हैं तो मोहब्बत है, ये मेन चीज सबसे पहले आती है, बाकी सब चीजें उसी से जुड़ी हुई है। जो भी कुछ है मोहब्बत का पहला हुआ है। और वो अपनी औलाद के मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं थे। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि वो बड़े पॉजिटिव रहते हैं कि मेरा बेटा तो अब उसका ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नहीं, नॉट इन दैट सेंस कि कभी कभी नाकाम भी होते थे तो बाबा ये कहते थे, मसलन मैं काफी अर्से तक मैथ्स में फेल हुआ, तो बाबा
ऐसे कहते थे मार्क शीट पे मैं समझता था डांट पड़ेगी मार पड़ेगी, वो यार तो कहते थे वो पढ़ाई पे टाइम दो सब चीजें, मगर जब रिजल्ट आ जाता था उनके हाथ में होता था तो कहते थे बेटे ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या तो कुछ गलतफहमी हुई आपके साथ ऐसा हो, या समझ नहीं सके, मेरा बेटा मैथ्स में नहीं फेल हो सकता, क्या बात। तो दोबारा ट्राई करो। तो उसकी वजह से कभी भी वैसी शर्मिंदगी नहीं हुई कि हम दोबारा अटेम्प्ट ना करें। फिर बड़े भाई राफे भाई ने और बड़ी बहन ने मेरी मदद की, फिर अलहमदुलिल्लाह मैथ्स में अच्छे नंबर। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजों में सबको ही हमने देखा कि उन्होंने इस तरह की नाकामियों को, खासतौर से जो एकेडमिक नाकामियां है, वो उस जमाने में भी वो कहते थे कि तालीम एक्चुअली ये नहीं आपको मार्कशीट बताती कि आप किस उसमें हैं, आप एफर्ट करें। कुछ चीजें जो सामने आई होती है वो उन्होंने उसको जज किया होता है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, आगे देखो, कभी भी हिम्मत ना हारो, ये चीज मैसेज उनको मिला। तो ये रहा, है ना। मतलब वो मोहब्बत पे यकीन रखते थे, मिल्कियत पे यकीन नहीं रखते थे। वैसे बिल्कुल भी नहीं। और उसके अलावा हमारे चूंकि चचा वगैरह हम लोग सब, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, बाद में भी हो गई थी, उनका भी हमारी तरबियत में चचाओं का, फूफियों का, और सब दौर तो वो था कि हमारी तरबियत हमारे महल्ले वालों का वो भी था, साथ होता था, मोहल्ले के भी बात बड़े बुजुर्ग, अगर दोस्त का कोई दादा है तो हमारा भी दादा ही है, और दोस्त का चाचा है तो वो भी हमारा चाचा ही महल्लेदारी के अंदर। बिल्कुल चचाओं का भी था। और शमसुद्दीन कादरी साहब मेरे बड़े चचा, वजीउद्दीन कादरी, मुख्तलिफ चचा, इन सब ने मुख्तलिफ चीजों में तरबियत और टाइम दिया। अब बाबा की आपने बचपन की, मैं आपको एक वाकया अगर सुना दूं, वापस चलते हैं रेट्रोस्पेक्ट में। बाबा सुनाते थे, और जब कभी भी सुनाते थे तो आप दीदा हो जाते थे। और वो ये था कि बाबा ये बताते थे कि तब छोटे ही थे, पता नहीं किसी चौथी या 5वीं क्लास होगी, तो किसी लड़के ने बदतमीजी की, हिंदू टीचर थे और उन्होंने बदतमीजी या कुछ किया, तो उस जमाने में तो खुला हाथ से मारते थे ना तो उन्होंने अपनी जूती निकाली और निशाना ताक के उस लड़के को मारा। और वो लड़का झुक गया। बाबा पीछे थे, बाबा को लग गई। अरे तो ज़ाहिर स्कूल शेरवानी पहन के जाते थे। तो बाबा उठे, बाबा ने जो है शेरवानी से जूती उठाई, साफ की अपनी शेरवानी से, उस्ताद को ले आके पेश की। अच्छा। वो आप कहने लगे नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करो, तुम तो सैयद हो। ज़ाहिर है हिंदू भी इस तरह की चीजें कहते थे कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें क्यों मेरी जूती उठाई, इस तरह बात की। फिर शाम में वो दादा के पास बैठे हुए थे, दोस्त भी थे दादा के, तो बाबा डर गए कि शायद कोई गुस्ताखी हो गई, शिकायत के लिए आए। तो देखा दोनों रो रहे, तो कह रहे हैं कि ये मुझे ये बता रहे हैं, कह रहे हैं इधर आओ हसन, हसन बाबा का घर का नाम था। तो हसन इधर आओ, तो उस्ताद ये कह रहे हैं कि तुमने जो है जूती उनको सफाई करके ऐसे करके वापस की, और मैं शर्मिंदा हूं तुमने सर पे रख कर क्यों नहीं। ये मेहराब थे तो लर्निंग भी होती। हालांकि एक मुसलमान एक हिंदू उस सेंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और मद्रास का कल्चर स्पेशली अगर आप जाए साउथ में, साउथ इंडिया में, तो वहाँ वो तासुब की वो कैफियत नहीं है। और उस्ताद का एहतराम, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, हमेशा ऐसे। और उसकी वजह से असरात जो आगे तहजीब में आए और फैमिलीज में। और मुसलमान काफी संस्कृत वगैरह भी सीखते थे वहाँ पे। जी बहुत, अंग्रेजी मद्रास में तो एक आप अभी भी मैं मद्रास बाबा के साथ जाना हुआ रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए, बात है 98 की, तो वहाँ एक आम आदमी भी आप ठेले वाले से बेसिक अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। अच्छा। लिटरेसी कहते हैं 100% है, 100% लिटरेसी है, तकरीबन नहीं है 200%। मतलब हमें तो मद्रास से सिर्फ वो डोसा वोसा ही मालूम होता है। जी जी, ज़ाहिर बचपन की तो बहुत से आपकी बात यादें रखता हुआ है, तो वो उसमें बचपन, मेरा बचपन हो या बाबा का बचपन हो, इंसान रिकॉल करने लगता है, अच्छा भी लगता है। मगर मेरे ख्याल है कि एक सैंपल के तौर पे अच्छी गुफ्तगू हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कि वो भी दिन याद आते हैं जब अब्बा से फेंटी लगी थी, और ये भी दिन याद आते हैं कि फेंटी लिखने का कोई नहीं, मिस करते हैं। सही फरमाया, ऐसा लगता है। तो मेरे ख्याल मामला जज्बाती है, हम पहले हिस्से को यहीं पे रुकते हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, दोबारा नए से।